So students, what we have studied till now is that when there is a curved surface and when we go very near to that curved surface, then we treat like this is earth. You can see that earth appears to be flat. So when you go very near to a curved surface, so very small amount of the curved surface, we treat it as curve behaves like a flat surface. So we treat curve as a straight line. So this curved surface behaves as a, and this your arc behaves like length of a line. So this arc even behaves like a length when we go very near to the surface. So their lengths are same. So same here. So the earth appears to us as flat and earth attracts the object due to gravitational force. And the name of this gravitational force is short, like full name is, somebody's full name is Rajesh. So we call him Raju, isn't it? Yes, nickname. So similarly, nickname of gravitational force is gravity. Okay. Now, if there is force, if there is force acting, definitely there will be acceleration. Also, we have read this formula in 9th class. F is equals to ma. That is Newton's second law. So, what we have seen here is that whether the mass, this m, is 1 kg or 10 kg or 100 kg, same force is applied on all of them. Force is same. Sorry. Acceleration is same. What is same? And acceleration is 9.8 meter per second square in this case, 9.8 meter per second square in this case, and 9.8 meter per second square in this case. So in all the three cases, so acceleration is equal to 9.8 meter per second square, and near to the surface of earth, it is independent of mass. It is independent of mass near to the surface of. Is this clear? So that is why as A is constant near to the surface of earth, so this is near to the surface of earth. Okay, this A is constant. So we have given a special name to this A. We have taken this name from this gravity G. So this acceleration I write as G. So a special name is given to this acceleration, and that is acceleration due to gravity, acceleration due to gravitational force. And that is why we have replaced the A with G. Okay. So in this formula, we have replaced the word A with G, and this G is constant. And its value is 9.8 meter per second square. So that's the value of G. And this force also we replaced with word weight. See, in chemistry, we use the word weight or mass. Both of them have the same meaning. Or even if you are taking weight, so that is m into g, so g will be cancelled out or not considering. So only mass. But in physics, weight and mass have two different meanings. Mass, you can see, is the matter contained in the body. So mass is the matter. Okay, means your particles that are there in the body. They form the mass. And what is weight? Weight is your gravitational force.
So weight is the name, like we have replaced A with G. So similarly, we have replaced gravitational force with a special physical quantity, weight. So this is weight, this is gravitational force, this is force. Is this clear to everyone? Yes. Yes, sir. So write it down, students. Now we will study the motion. So these formulas are clear. Shall we move forward? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now let us do one numerical. We have a ball, and that ball is, so we have a tower. These figures are not to the scale, student, okay? Now we have a ball over here, and this ball is thrown vertically upwards. Okay, and what is the speed with which it is thrown upwards? 19.6 meter per second. That is the initial velocity. And then this ball will come down. Okay, so this ball will go up and will come. Yes or no? Yes. Yes, sir. So it has come down to the surface of Earth. Now it takes, total time taken is 6 seconds. Clear? You have to find the height of this tower. That's your question. Is this clear? So students, as there is no force acting on the x direction, the only force acting on the ball is always in the downward direction. That is your weight, and that force is your m into. First of all, let's make this thing clear. On this ball, the only force now when it is in the air, so ball in air, there will only be two forces, horizontal and vertical. So there is no one applying any horizontal force in this direction. You have also applied the force only in vertical direction. This is force external that you have applied. So this is the applied force that you have applied in upward direction. And acceleration due to gravity is the force in downward direction, gravitational force. Is this clear? So you have applied the force only in upward direction and only once. See, force was only up to the point when the motion started. As the motion was started, there is only one force when the ball is in air. As the ball is in air, there is only
one force. Which force is it? Gravity. Gravitation. Gravitational force. Very good. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So now this motion, as the force in horizontal direction is zero, so this direction will treat as vertical motion, because the only force which is acting is in a vertical direction. So that is why, which motion is it? Vertical motion. So we'll treat this motion as vertical motion. Ball is going up this way and also coming down this way. You can treat it like this. Even if it is going like this, doesn't matter. But when we are talking about, there is no horizontal force acting on it, only vertical force. So we will studying only vertical motion. So this is motion in straight line. Is this clear? Yes. Now, so motion in straight line, first thing. Second thing, acceleration, that is acceleration due to gravity, which is fixed. Is constant in this question. So if motion is in a straight line and acceleration is also constant, then we have the equations of motion. So whether it is horizontal line, whether it is vertical line, the equations of motion that we have for the horizontal, we have already derived. What are the equations? V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, and V square minus U square is equals to 2AS. Is this clear? Yes. Where S is equal to displacement, where U is equals to initial velocity, where V is equals to final velocity, where T is the time taken for displacement S. That is very important. Okay. These all are related. Time taken means this was your U, this is your V, time taken is T, the displacement is S. Okay. And acceleration, which is constant. Right? So we have these equations of motion. Now tell me which one of them are vectors. Displacement is a vector quantity. This is also a vector quantity. Your velocity is a vector quantity. Your acceleration is also a vector quantity. So only time is a scalar quantity. So time is scalar. Otherwise, rest of them are vector quantities. So whenever you write the vector quantities, note down, whenever you write a vector quantity, you write direction and magnitude. Both.
So that is important thing, students. Okay, you have to write both. Sir, give one example. Okay, so this is the first point. Second point, whenever there is motion in a straight line, how many possible directions are there? If it is a vertical motion, upward, downward. If this is horizontal, then two direction, only two direction are possible. So motion in a straight line, only two directions are possible. So when only two directions are possible, we can take one direction as positive, another direction as negative. So like if you are moving left, right, so right direction we can take as positive. If you are moving in the right direction, we'll take it as positive. If you are moving in the left direction, means moving or vector quantity direction. If the direction of vector quantity is in towards right, we'll take it positive. If the direction of vector quantity is left, we'll take it negative. Is this clear? Similarly, see, that's your choice. Sir, I want to take this direction as positive and this direction as negative also. Yes, you can take. That is also correct. And this is also correct. So similarly in upward motion, means in vertical motion, you can take this direction as positive and this direction as negative. Or you can take upward direction as negative. See, that's your choice, students. There's no issue with it. Both are correct. Answer will not have any impact. Is this clear? The only thing, third thing that you need to understand is in your answers, because you have chosen this negative and positive directions all by yourself, right? So when you will be writing the answer for a vector quantity, you cannot write your answer in positive or negative. That will be wrong. So if you're writing answer telling positive, negative, wrong. If it is given in the question that this is positive direction, this is negative direction, then it's all right. Otherwise, writing the answer as positive, negative will be, sir, then how will we tell the direction? Because you have chosen this right direction as negative, so you need to tell in right direction if your answer is negative. Okay? Or if you have chosen this direction as right and your answer is positive, then you will tell right direction. This negative direction you have chosen, so write it left direction. So you have to write here the magnitude as well as this right, left, or if there are two bodies, then you can tell if it is this direction you have taken negative and this direction you have taken positive. So if your vector quantity is in this direction, you will, so this is suppose A, this is B. So like velocity of B and the answer comes out -3 meter per second, suppose. So you will write, now how you will be writing the answer? You will be writing the answer 3 meter per second towards A. Okay? Okay, sir. You cannot, because you have assumed negative and positive all by yourself. So in the answer you cannot write this. Similarly, in vertical motion, suppose you have chosen either this or this. So if you have chosen suppose this and your answer is like this is your final velocity which is in downward direction and it is you have chosen it negative, so definitely it will be coming out minus suppose 10 meter per second. So your velocity 10 meter per second will minus 10 meter per second will be wrong. You have to write 10 meter per second in downward direction. Is this clear to everyone?
So these are the three things that you need to make in mind. First thing, whenever you write a vector quantity, write direction and magnitude both. So you can see that like this velocity, this is the direction negative sign. And this here also this negative is the direction sign. So we have either write the negative sign, but this in the question, if it is given that right, this direction is negative, this direction, okay, then your answer this is correct. But if it is not given which direction is negative, which is positive, and you have taken your assumption, क्योंकि otherwise जिस बच्चे ने इधर का लिया है, अब आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड, अगर किसी बच्चे ने इधर ले लिया तो उसका आंसर, आपका तो आंसर -3 आ रहा है, उसका आंसर तो +3 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना? तो डेट विल बी रॉन्ग. तो इसीलिए, लेकिन अगर उसका आंसर +3 मीटर पर सेकंड आ रहा तो वो भी यही लिखेगा 3 मीटर पर सेकंड. सपोज इधर वही ए और बी था, यहां आपका बी है और यहां पर क्या है ए, तो 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए. और यहां भी उसका ए था, ये बी की बता रहा है ना वो, तो -3, तो यहां भी उसका आंसर वही आएगा, माइनस का मतलब इस तरफ, तो 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए. तो यहां आपके आंसर सेम आएंगे दोनों के, 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो. उसी तरीके से यहां पर अगर आपने यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो यहां आएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, और यहां आ रहा था -10 मीटर पर सेकंड. तो इसीलिए किसी बच्चे का आंसर माइनस आएगा, किसी का प्लस आएगा. तो इसीलिए इसमें नेगेटिव डायरेक्शन को आपने डाउनवर्ड माना तो यहां लिखो 10 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहां आपने पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड माना है तो प्लस की जगह लिखो 10 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स आपको प्लस और माइनस चेंज करने पड़ेंगे जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So students, shall we do this question now that we were doing? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स, अब आपका एक क्वेश्चन था. अब आप सबसे पहली बात तो ये बताओ अब कि सर हम किसको नेगेटिव मानने किसको पॉजिटिव मानने, तो ये हरदम कंफ्यूजन रहेगा. तो हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. ये नहीं है कि जो मन में आ जो मान लिया, नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी है, लिख लो स्टूडेंट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको लिखते चलो, बिना लिखे कोई फायदा नहीं है. हमारी स्ट्रेटेजी है डायरेक्शन इन विच मोशन स्टार्ट्स. So direction of motion will take as positive. जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन है, स्टार्टिंग डायरेक्शन मोशन की, उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे बस. इज दिस क्लियर? Yes. अब ये क्वेश्चन था, अब आप इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन आपकी क्या है? Upward. अपवर्ड. मैं इसको टाइम 6 सेकंड को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं. तो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन इस केस में हो गई पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई? तो whenever you write a vector quantity you need to write the direction and magnitude. स्टूडेंट्स, आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिखनी थी डायरेक्शन, है ना? तो इसीलिए हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, तो इसीलिए हमने दोनों डायरेक्शन ले ली अपनी. तो फर्स्ट स्टेप हमने ये एक्चुअली यहां हमने फर्स्ट स्टेप किया है, मोशन स्ट्रेट लाइन, हमने दो डायरेक्शन पॉसिबल है, हमने अपनी डायरेक्शन ले ली. कैसे ली? ऐसे ली. अब उसके बाद जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे, तो हमें दोनों चीज साथ लिखनी है. डायरेक्शन आप किससे बताएंगे? प्लस माइनस से, और मैग्नीट्यूड आप वैसे बता देंगे, तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? और तीसरी बात, जब आप आंसर लिखेंगे तो उसको प्लस माइनस में नहीं लिख सकते. वेक्टर क्वांटिटी अगर आई है तो आपको उसे बताना पड़ेगा प्लस डायरेक्शन आपने अपवर्ड ली है, और
नेगेटिव डायरेक्शन आपने डाउनवर्ड ली है, तो आपको आप आंसर में रिप्लेस करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Clear, sir. ओके. तो चलिए क्लियर है. तो इसको हम अब हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है. ये जो आप इसको वर्टिकल मोशन ट्रीट कर रहे हैं, ये बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ आपका मोशन, ठीक है, और यहां गया है. तो पहले ये आपका स्टार्टिंग था और फिर ये आपका सपोज ओरिजिन है. चाहे आप इसको ऐसे ले लो और चाहे आप इसको ऐसे ले लो, एक ही बात है. यहां आप इसको, ये था आपका जीरो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन. तो पहले आप यहां गए और यहां से आपने यू टर्न लेकर आप इधर चले गए. ओके. अगर बात ध्यान से सुनो मेरी, इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में. फोर्स क्या है? कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F इज इक्वल्स टू एम ए भी कांस्टेंट होगा क्योंकि मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. तो बॉडी पर हर जगह एक्सेलरेशन सेम होगी. सर यहां पर तो बॉडी की स्पीड जीरो है तो भी क्या एक्सेलरेशन होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लेना देना फोर्स से है. F इज इक्वल टू एम ए. और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगी जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होंगे. तो यहां उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है इस तरफ, इस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया राइट साइड की. तो फोर्स लेफ्ट साइड में जा रही थी, वो इसको इधर खींच रही थी बॉल को, इसीलिए बॉल की स्पीड जीरो होती गई और बॉल रुक गई और फिर इस तरफ चल पड़ी. बात समझ में आ गई सबको? सर ये एग्जाम्पल कैसा हो सकता है? ये एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, सपोज ये एक ढाल है और आपने बॉल पे फोर्स लगाया और बॉल इधर चली गई. आपने तो एक ही बार फोर्स लगाई, बॉल ऊपर जाएगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी. मान लो फ्रिक्शन जीरो है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, और उसके बाद जो बॉल कहां आएगी? फिर तो नीचे आएगी, नहीं आएगी? यस. एग्रीड और नॉट एग्रीड? Yes, sir. तो आप जब भी ये चीज सोचे तो इस तरीके से, तो ये बस ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है. दोनों के दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा. अगर आप यहां पर ए को जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड ले लें और ये जो आपने ये चीज ली है इसको ऐसे ले लें, सारी चीजों को, तो यू विल गेट द सेम आंसर. कोई फर्क ही नहीं है. आप ये बात समझे? तो आप मुझे बताओ इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कह रहा हूं मैं, ये पोजीशन जो है मेरी, ये पोजीशन मेरी यहां पे ये ओरिजिन था, ये मेरा ये जो डिस्टेंस है मेरा ये h है ये. तो यहां ये पॉइंट क्या आएगा? माइनस h आएगा, नहीं आएगा? बताओ. Yes, sir. तो उसी तरीके से अगर आपका ये अपवर्ड पॉजिटिव है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों लिखनी पड़ेंगी. तो इस केस में s जो है, जब आप टाइम, सबसे पहले ध्यान रखें कि टाइम क्या ले रहे हैं आप. सबसे पहले कहानी शुरू होगी टाइम से. टाइम 6 सेकंड. कहां से कहां का 6 सेकंड है? ये था पॉइंट आपका A और ये है पॉइंट आपका B. यहां से यहां, या इसको आप ओरिजिन मान सकते हो O और इसको मान सकते हो A. तो ये था आपका O और ये था आपका A. तो O से आपकी बॉडी यहां गई है, चेंज इन पोजीशन. तो 6 सेकंड में चेंज इन पोजीशन क्या हुई ये मुझे बताओ आप. इज दिस क्लियर? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन कितनी है? माइनस h. इनिशियल पोजीशन क्या थी? जीरो. तो माइनस h माइनस जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? माइनस h. या फिर आप वैसे देख लो, दिस डिस्टेंस इज h इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई. तो आप फार्मूले से लिखोगे तो भी वही बात है. वैसे ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टाइम आपको पता लग गया.
डिस्प्लेसमेंट आपको पता लग गई। अब इनिशियल वेलोसिटी लिखो। इनिशियल वेलोसिटी पहले मैग्नीट्यूड लिखो 19 मीटर पर सेकंड, लिख लिया मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन बताओ, क्योंकि क्या पॉइंट है, वेन एवर यू राइट ए वेक्टर क्वांटिटी राइट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। टाइम क्या स्केलर, तो मैंने अब प्लस माइनस लिखा। नो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने क्या लिखा, फाइन क्योंकि उसकी डायरेक्शन बता रहा है ये। अब ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब u क्या है, पॉजिटिव इन अप वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसका डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब ये डायरेक्शन कहां थी, सबसे पहले अपवर्ड। क्या थी, अपवर्ड की डायरेक्शन मैंने क्या ली है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने पॉजिटिव ली है, तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव। सबकी समझ में आ गई ये बात। अब उसके बाद आगे लिखो और क्या। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं इसमें, ये चीजें तो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है। टी आपको दिखाई दे रहा है, एस आपको दिखाई दे रहा है, तो एस है तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक फॉर्मूला रहेगा, इसमें से और इसमें से। अब एस आपके पास है, यू आपको नहीं चाहिए, टी आपके पास है, तो टी अगर आपके पास है एस और टी तो ये फार्मूला लगाना है, और एस और वी आपके पास है तो ये फार्मूला। बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स। इज दिस क्लियर। Yes. और आपके पास अगर v और t है तो ये लगाना है, क्योंकि a और u तीनों में है, a और u, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है, a और u का तो वो तो तीनों में जरूरत पड़ेगी आपको a और u की। लेकिन अगर vt है तो ये लगाओ, st है तो ये लगाओ, sv है तो ये लगाओ, तो आपको v s t इन तीनों चीजों को देखना। तो यहां पर आपके पास क्या है, s एस एंड टी एंड t, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वन सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। तो लगाओ सेकंड फॉर्मूला। अब a क्या है, a की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कहां है जी की, हमेशा हमेशा डाउनवर्ड होगी। क्या होगी, डाउनवर्ड अब डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव मानना है या नेगेटिव मानना है, सर नेगेटिव तो बस, तो पहले आप डाउनवर्ड या अपवर्ड सोचेंगे, उसके बाद साइन लगाएंगे। इज दिस क्लियर। यस सर अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, तो -h इज इक्वल्स टू u क्या आपका 19.6 इंटू टाइम कितना है 6 प्लस हाफ इंटू, तो आप इसको जी भी बोल सकते हो, ओके। ए का स्पेशल नेम क्या है, जी, तो हाफ इंटू ए क्या है -9.8 इंटू टाइम कितना आपके पास 6 सेकेंड्स, तो स्क्वायर कर दो। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करके बताओगे मुझे कितना आएगी आपकी एच की वैल्यू, 58.8 ओके। तो एच इज इक्वल्स टू 58.8। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर आपको पहले से ही पता था कि वो बॉल नीचे आई है टावर से, तो इसीलिए आपने पहले ही -h ले लिया। तो यहां पर आपने इसको पहले ही डाउनवर्ड आप ले चुके हो, पहले ही डाउनवर्ड ले चुके हो। तो अब जो ये h आया ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड क्यों है मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां आप डायरेक्शन पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हो, डायरेक्शन इज नेगेटिव, और h जो है वो आपका सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड। अगर आप डायरेक्शन
डिस्क्लोज नहीं करते, सिर्फ एच लेते हैं। सिर्फ क्या लेते हैं? एच। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एच लेते हैं, आप डायरेक्शन डिस्क्लोज नहीं करते, तो आपका आंसर यहां नेगेटिव में आएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अगर आप बिना डायरेक्शन डिस्क्लोज के, आपको पता ही नहीं है कि बॉल ऊपर है, नीचे है, कहां नहीं है, और मैं तो कहता हूं सबसे बढ़िया बात होती है कि आप डायरेक्शन डिस्क्लोज मत करो, मत करो डायरेक्शन डिस्क्लोज। समझ गए? तो अगर बिना डायरेक्शन डिस्क्लोज किए हम इस क्वेश्चन को करते तो और भी अच्छा होता। वो कैसे? हमें नहीं पता कि हम उसको एच मानते ही नहीं, हम तो डिस्प्लेसमेंट को एस मानते हैं। भाई कहां गई कहां नहीं गई हमें नहीं पता, ऊपर गई या नीचे गई, डिस्प्लेसमेंट कहां होगी हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट को, तो निकालते हैं। तो आप यू आपका वही रहेगा, क्योंकि वो आपको पता है, प्लस 19.6 इंटू 6, टाइम भी वही रहेगा, प्लस हाफ इंटू ये भी माइनस 9.8 रहेगा, और ये भी 6 स्क्वायर रहेगा। तो अब जो आपका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा -58.8 मीटर। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? Displacement. यहां आप एच जो था आपकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था, लेकिन यहां ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आपको पता लग गया कि यहां आपका ओरिजिन था और उसका मैग्नीट्यूड है 58.8 मीटर। बॉल डिस्प्लेस हुई है अपने ओरिजिन से किस डायरेक्शन में? अपवर्ड आपने पॉजिटिव मानी थी, तो बॉल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है? नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ। यानी कि इस तरफ ओरिजिन से 58.8 मीटर मूव करो। तो यहां भी आप आंसर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। आप आंसर लिखेंगे 58.8 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप कि मोशन अंडर ग्रेविटी का हर क्वेश्चन अब आप हैंडल कर सकते हैं, Yes. और कोई चीज आपको कंफ्यूज भी नहीं कर सकती। ना कोई बुक आपको कंफ्यूज कर सकती, ना मैं आपको कंफ्यूज कर सकता, और ना कोई और आपको कंफ्यूज कर सकता। तो इसीलिए हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है काम करने का, लेकिन आप समझ गए हैं सही तरीका क्या है। ओके? डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ अब वो तो रिलेटिव मोशन जिसने पूछा था वो तो है ही नहीं आप। तो नमन, आपका तो टॉपिक मैं मानता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आप बेटे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ओके? अब चाहिए प्रैक्टिस। अच्छा, आप आयुष कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना चाहते हो? ये दिस टॉपिक वाज रिक्वेस्टेड बाय नमन, सो आई टुक दिस टॉपिक। तो आज संडे में ना हम 1-to-1 क्लास लेते हैं, मतलब 1-to-1 टॉपिक। आप अपनी चॉइस का टॉपिक बताओ और मैं उसे बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से उसको टाइम लेकर समझाऊंगा। तो इफ यू हैव want to take any particular topic you can tell me, or Rishi still you have a choice beta. ऋषि, Yes, sir. बेटे आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ आया नहीं आया? Sir, आगे. और ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ये हर जगह यूज होंगी पूरे फिजिक्स में, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। और ज्यादातर हम आगे आगे भी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, इन 90% ऑफ द केसेस मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होता है। मतलब ज्यादातर जो है 80% ऑफ द केसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, या तो समझ रहे हैं एसएचएम होगा या सर्कुलर होगा या मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। तो ज्यादातर केसेस में मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो या फिर सर्कुलर या सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, तो मीन पोजीशन में बॉडी मूव करती है। तो बेसिकली 3 तरह के मोशन ही ज्यादा है, एक सर्कुलर, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, और तीसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ज्यादातर मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही चलता है स्टूडेंट्स। ओके? हालांकि आगे जैसे जैसे आप हायर
पढ़ना शुरू कर दोगे तो सर्कुलर और एसएचएम बहुत ज्यादा यूज होगा, लेकिन बिगिनर लेवल पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन ज्यादा चलता है। ओके, हाँ चलो, तो क्योंकि आपका जो एसएचएम है और वो है, वो तो लास्ट के 2 चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस होगा 11th क्लास के, ठीक है। और सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत है कहीं, तो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे एग्जाम में, क्योंकि उससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप अब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछना चाहते हो आयुष? ओके चलो, ऋषि, हाँ करुणा, आ गई है करुणा वापस। हम सोच रहे थे भाई करुणा तो है नहीं, उसका टॉपिक ले क्या क्या लें अब, तो तुम वापस आ गए हो, तो अब हम तुम्हारा टॉपिक ले सकते हैं। हाँ ऋषि, क्या कह रहे थे बेटा? नो सर, नो, इसमें डाल दिया सर, केमिस्ट्री में 1 PM हाँ हाँ, करुणा यू आर प्रेजेंट। हम आपका टॉपिक स्टार्ट करें, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ बोलो। चलो ठीक है, अब रहना तुम क्लास में, जाना मत। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो संडे क्लास की यही खास बात है कि बस आप टॉपिक पूछो कि सर ये टॉपिक करा दो मुझे, तो आपकी पर्सनल चॉइस है और मैं उस टॉपिक को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, हर क्लास का एम बिल्कुल अलग अलग होता है, तो इसीलिए इस क्लास का, दिस क्लास हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ओके, वो धीरे धीरे एकदम मजे से, बिल्कुल संडे है ना, बिल्कुल आज मतलब रिलैक्स है कि नहीं? हाँ भाई आयुष, नमन, बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्स हो गए, फील हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब संडे की फील आ रही है नहीं आ रही है, बताओ मेरे को बस। आ रही है सर। तो इसलिए पढ़ाई में भी वो फील आएगी, मतलब ये नहीं कि भाई मतलब किसी और को पूछो तो क्या, तो तुम्हारा तो मतलब क्लासें लगती रहती है तुम्हारी तो, है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई हमारे गियर चेंज होते रहते हैं। मतलब अब जो है संडे का मौसम है, तो उस अनुसार कहानी चलेगी ना आगे, मजे से, बिल्कुल एकदम तसल्ली से, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, जब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमने वेलोसिटी की बात की थी, द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड विद दिस वेलोसिटी, कितनी थी वेलोसिटी? 19.6। 19.6। तो u इज इक्वल्स टू, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली थी तो प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये बात आपको नहीं भूलनी है, जो मैंने 3 पॉइंट्स आपके ऊपर लिखवाए थे। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर से बता दूं, whenever you write a vector quantity you are supposed to write direction and magnitude both। तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी से मतलब आप समझो कि भाई जिसका आपको मैग्नीट्यूड पता है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं पता तो मत लिखो डायरेक्शन बेशक, और अगर मैग्नीट्यूड पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन में और आपको उसने डिस्क्लोज कर दिया वेरिएबल में, तो आप लिख भी सकते हो। तो कई क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें उसने जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बता दिया कि भाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से बता दिया। सपोज वेरिएबल आपको दे दिया उसने, कांस्टेंट वेरिएबल दे दिया ए किसी वेक्टर का, या बी या सी या एक्स, मतलब कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो आप उसके साथ लगा सकते हो। लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लगाएंगे जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपकी चॉइस है किस डायरेक्शन क्या लोगे। और तीसरी बात, जब आपका आंसर वेक्टर क्वांटिटी में आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ आपका प्लस माइनस आएगा, तो आप प्लस माइनस को हटा देंगे और आप उसकी जगह लिखेंगे, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो टुवर्ड्स दिस और अवे फ्रॉम दिस। अगर आपका आंसर आता है सपोज, जैसे वी ए सपोज आपका है प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, अगर ये आएगा तो आप लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। बताएंगे इसमें क्या लिखेंगे हम?
यस आयुष, क्या लिखेंगे बेटा? अच्छा, टूवर्ड्स, यस, ये प्लस डायरेक्शन है आपकी, तो वी ए की प्लस डायरेक्शन मतलब ये टूवर्ड्स वी, बिल्कुल ठीक है। तो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर ये आ जाता बाय चांस, और अगर आपका आंसर ये ना होकर आपका आंसर होता -7 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखते? यस, 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया ना 7, तो एक ही स्पीड है -7, यानी माइनस उसका, सॉरी वेलोसिटी -7, तो डायरेक्शन तो नेगेटिव ले लिया आपने, और 7 अब इस डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम बी। तो आप डायरेक्शंस ऐसे लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. तो लास्ट में प्लस और माइनस को आप हटा देंगे। तो चलिए, तो अब करते हैं, ये 3 फंडामेंटल रूल्स हैं, इनको आप लिख लें, पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज होंगे ये। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हर जगह यूज होंगे, कि वेक्टर क्वांटिटी को जो हम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन को हम बताएंगे प्लस या माइनस साइन से। ओके, चलिए, तो अब है स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी जो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें हमने किया u इज इक्वल्स टू माइनस अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी थी, तो पॉजिटिव प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा। तो this was ball and this was the initial velocity of the ball। तो स्टूडेंट, जब भी हम ये लिखते हैं, ये वेलोसिटी किसको दिखाई दे रही है? ये आपका टावर था, तो anyone who is standing on the ground or who is standing on the tower, तो जो यहां खड़ा हुआ है उसको ये वेलोसिटी ये दिखाई दे रही है। सपोज ये इसकी जगह एक बैलून होता, और मैं बैलून में ही बैठा होता, और ये बॉल भी बैलून में है, तो बैलून ऊपर जा रहा है इतने वेलोसिटी से, तो क्या होता? समझ रहे हैं? या ये हेलीकॉप्टर है और मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं, तो जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी मेरी होगी। इज दिस क्लियर? और ये दोनों जो वेलोसिटी हैं, ये अगर मैं आगे कुछ भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, लिखा है मैंने कुछ, तो ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेरी गुड आयुष। तो ये वेलोसिटी अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड। कि कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, या टॉप ऑफ द टावर को भी ग्राउंड ही मानो, यहां खड़ा हो, तो उसको देखो वेलोसिटी कहां से आई। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वेलोसिटी जो शुरुआत जो इस चैप्टर की होती है, वो होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से हम पहुंचते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी विल बी सेम। अदरवाइज हमें यहां लिखना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है। तो मतलब आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है, और अगर सर इंस्टेंटेनियस लिखना है, तो यही एवरेज बहुत थोड़े टाइम के लिए ले लो ना। इसी एवरेज को, ये जो डेल्टा टी है, यहां इस डेल्टा टी के लिए एक और ये डी टी है, इसमें ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है। मतलब जितना टाइम आप जीरो के नजदीक ले सकते हो उतना टाइम ले लो। मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाल लो बहुत थोड़े से टाइम की, जिस पॉइंट की आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है,
उसी उसी वहीं पर आप एवरेज निकाल लो बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल की। तो आपको बताया था कि भाई जो कर्व होती हैं वो भी बहुत, जब आप बहुत नजदीक जाते हैं कर्व के तो इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे यहां पर। तो ये यही फार्मूला है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक सिंबल मैंने बदल दिया है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब ये चेंज कितना भी हो सकता है, लेकिन ये जो dx है, ये जो चेंज है d वाला, ये बता रहा आपको इनफाइनाइटेसिमल चेंज। मींस इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइट आपको पता होगा ना, बहुत बड़ा नंबर, और स्मॉल, तो मतलब इनफाइनाइट में चले जाओ स्मॉलेस्ट की तरफ, तो इस तरफ जाते चले जाओ, ये आपका ओरिजिन है। अगर इधर जाओगे तो आपका प्लस इन्फिनिटी आता है। लेकिन यहां आपको क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में स्मॉल रखना है, तो यहां आपको ये इधर माइनस है, लेकिन यहां माइनस इन्फिनिटी नहीं जाना, आपको तो जीरो पे जाना है, यहां नजदीक जीरो पे यहां जाना आपको। इज दिस क्लियर? तो ये जो dx और dt है मैंने आपको बताया, तो दे आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आप इसको अगर एवरेज वेलोसिटी लिख दूंगा तो सर में गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं है तो ये भी एवरेज ही। इज दिस क्लियर? लेकिन इस एवरेज वेलोसिटी का एक स्पेशल नेम है और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो है इस केस में जो हम रिलेटिव वेलोसिटी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और आप कई केसेस ऐसे भी पढ़ेंगे जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, जैसे आप पुलिस और थीफ का है ना, उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अगर इसको पकड़ना है तो इसने अपनी कार को एक्सेलरेट किया पुलिस ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे कि वो थीफ की कार्स को पकड़ सके। तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी हो सकती है एक्सेलरेशन, मान लो हाफ हो सकती है, लेकिन इसकी ज्यादा होगी अगर इसको पकड़ना है तो। ओके, तो इसमें भी क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बात आप समझ लो कि जो वेलोसिटी है उसका मतलब अगर सिर्फ यू बी लिखा है तो उसका मतलब है यू बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, चलिए इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी को और अच्छे से जो है वो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेट अस डू a question based on this. First question, suppose a car A moving at 10 meter per second on a straight road is ahead of B moving in same direction. ये B है और जो कार A है वो B से आगे है, और दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि A भी इधर मूव कर रहा है और B भी इधर मूव कर रहा है। ओके, और इसकी स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो केस होंगे आपके, या तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, तो इसमें आप फार्मूलेज लगाएंगे, जो है a is not zero but a is constant, जीरो नहीं है लेकिन a कांस्टेंट है, तो आप इसमें फार्मूला लगाएंगे अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर इसमें भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, क्योंकि a कांस्टेंट है भले ही जीरो है, तो फार्मूले आपके और छोटे हो जाएंगे, a को जीरो कर दो सारे फार्मूले में। तो दोनों ही केसेस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या है,
जीरो भी कांस्टेंट है और तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वहां लगती हैं जहां ए कांस्टेंट होता है। सर तीसरा केस, अगर ए जीरो ना हो तो, मतलब सॉरी ए कांस्टेंट ना हो तो, जीरो तो छोड़ो, ए जीरो भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो यहां ए जीरो नहीं था लेकिन कांस्टेंट तो था, और इस केस में ए इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या करेंगे? तो फिर आप अपने ए कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं आप वो यूज करेंगे, डेट इज v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी एंड a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और आप कैलकुलस यूज करेंगे थर्ड केस को हैंडल करने के लिए। ओके, तो ये केस तो बहुत हाई जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं, बहुत उनमें उनमें थर्ड केस आता है, तो आपके जो है ये सिलेबस में तो है ही नहीं थर्ड केस। ये तो जो जेई के क्वेश्चंस होंगे बहुत हाई लेवल के, वो भी उन्हीं में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम केस 1 ही कर रहे हैं कि एक्सेलेरेशन इसका भी जीरो है और इसका भी एक्सेलेरेशन जीरो है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो ए की डायरेक्शन है तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें निकालना है, ध्यान से समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा। दूसरा भी निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब ध्यान समझेंगे इसका मतलब क्या, हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी है? ए की। किसके रिलेटिव में? बी, यानी कि आप यहां पर बैठे हैं। अगर मैं सिर्फ कहता यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ ए है तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे खड़े हैं, समझ रहे हैं? यू आर ऑन द ग्राउंड। तो ये भी, इसको भी आप रिलेटिव लिख सकते हो, लेकिन यहां हमने इसको मानना है कि जब हम सिंपल वेलोसिटी कहते हैं तो ये रिलेटिव टू क्या है? ग्राउंड है। ये भी 6 क्या है? रिलेटिव टू ग्राउंड है। तो यू आर सिटिंग और यू कैन से यू आर स्टैंडिंग, एक ही बात है। आप वहां खड़े हैं या आप वहां बैठे हैं, तो आपको वेलोसिटी आई कहां से? डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि आप यहां खड़े हैं, ये पोजीशन आज आपने देखी यहां है, तो आप इसको देखेंगे 1 सेकंड के बाद ये 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलती है। कहां से निकलती है? डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर आप समझोगे, अगर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, तो आप उसका मतलब समझा करो क्या है, उसको फील किया करो। इसका मतलब है कि ये यहां खड़ा है, जब इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया जहां से, तो 1 सेकंड बाद वो उससे 10 मीटर दूर जा चुका होगा। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यस सर। अब आप फील करो वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि आप यहां बैठे हैं तो 1 सेकंड के बाद आप मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है यहां पे कि बी स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी भी हो सकता है और ये मूव भी हो सकता है, लेकिन आंसर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपसे पूछना चाहता है कि बी को आप कितना डिस्प्लेस होते हुए दिखे। ओके, तो चलिए मुझे बताइए, ये क्वेश्चन है वेलोसिटी, इसको लिखने का ढंग क्या है? मैथमेटिकली इतनी बड़ी कहानी को हम बार बार लिखेंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए है तो कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन यहां पर है आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो ऐसे लिखेंगे।
तो वेलोसिटी किसकी है, जिसकी है उसकी लिखो, पहले ए की है तो ए लिखो, और जहां आप बैठे हो या जहां आप खड़े हो, जहां से आप वॉच कर रहे हो, तो यहां से आप क्या कर रहे हैं उसको, वॉच, ये लिखो। आई बात समझ में? तो आप उसको वॉच कर रहे हैं, यहां से बी में बैठे हैं आप। अब आप मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक सेकंड में वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब एक सेकंड बाद ये आपकी पोजीशन थी, सपोज यहां था बी और यहां था ए, ओके। मैं तो कहता हूं इजी समझने के लिए समझ लो दोनों, बी और ए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हालांकि गिवन है कि वो आगे है उससे, ये गिवन है, ठीक है। ये बी है आपका और ये आपकी कार ए। तो मान लो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और ये आपका, ये सपोज है इससे इसका जो डिस्टेंस है 10, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो इसको ओरिजिन मानो। अब आप मुझे बताओ एक सेकंड बाद क्या होगा, ये बताओ बस मुझे। ये 6 मीटर पर सेकंड है, तो ये कहां पहुंच जाएगी, यहां पर, ये आपका जो बी है। यस बेटा, करो ना, बी यहां पहुंच जाएगा ना आपका, Yes, sir. और ए कहां पहुंच जाएगा, 20 मीटर पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी पहले भी ओरिजिन था, अब भी बी को आप ओरिजिन मान लो, अभी भी ओरिजिन ही रहेगा। तो ए की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो एक्स बी माइनस एक्स ए, ये इसका मतलब, ओके। तो पहले डिस्प्लेसमेंट 10 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई, 14। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात है ये, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले 10 था 14 मीटर हो गया, तो यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना बढ़ गया, 4 मीटर एक सेकंड में। 4 meter. 4 मीटर कितनी देर में बढ़ा, एक सेकंड में, तो 4 मीटर पर सेकंड, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो पहले ही था दोनों के बीच में, इससे कितना, 4 मीटर पर सेकंड, ओके। तो 4 मीटर हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज 1 सेकंड, तो इसीलिए वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझना है कि उनका जो डिस्टेंस है वो किस रेट से बढ़ रहा है। यहां भी तो यही करते हैं, भाई आप यहां खड़े हैं, जरूरी थोड़ी है कि बस भी यहीं खड़ी रहती है हमेशा, नहीं, हो सकता है बस आपसे दूर खड़ी हो, लेकिन बस जो है वो एक सेकंड में आपके और आपके यहाँ का बीच का डिस्टेंस x था, और बस जो है वो 10 मीटर चलेगी एक सेकंड में यहां से यहां। तो बस की अब पहले x था, अब एक सेकंड बाद जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना है, x प्लस 10, मतलब x प्लस 10 है, तो रिलेटिव कितना इंक्रीज हुआ, 10 ही तो इंक्रीज हुआ।
तो इसीलिए आपने बस की स्पीड कह दी 10 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? Yes. Yes, sir. तो इस 14 में से आपको 10 निकालने पड़ेंगे क्योंकि 10 तो पहले ही थे, तो ये 10 हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये 10 आपका एक्स नॉट क्या है? No. एक्स नॉट। और ये है आपका अब एक्स। तो ये एक्स नॉट पोजीशन है, पहले से ही इतना है, और अब इसकी जो पोजीशन है वो है एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इसकी पहले इसकी पोजीशन थी सपोज एक्स नॉट या एक्स वन, अब इसकी पोजीशन कितनी है? एक्स टू या एक्स। अगर इसको एक्स नॉट मानते हो तो इसको एक्स मानना पड़ेगा, इसको एक्स वन मानते हो तो इसको एक्स टू मानना पड़ेगा। तो एक्स वन एक्स टू मान लो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका यहां से यहां, अगर ग्राउंड से आप देख रहे हैं तो ये 10 मीटर, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और ये पहले से इतनी थी एक्स नॉट, तो एक्स नॉट प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस हो गया 20। ओके। तो स्टूडेंट्स आप अब आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको पहले जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो पहले डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में उस बात को समझें। ओके। अब इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां आपने देखा कि जो हम अभी तो यहां आपका ए था, सॉरी बी था, और ये था वेलोसिटी ए, और एक सेकंड के बाद ये जो आपका ए था ये तो 10 मीटर आगे पहुंच गया, और ये जो बी था आपका ये यहां से 6 मीटर आगे पहुंच गया। तो ये था मान लो बी, तो बी जो है वो 6 मीटर मूव कर रहा है, पहले इनके बीच का डिस्टेंस था 10 मीटर। तो तो वेलोसिटी ऑफ ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब उस ए ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? 10 मीटर, है ना? Yes. और इसने भी इस डायरेक्शन में कितनी की? 6 मीटर। 6 meters. तो नेट जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसमें से इसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गई। कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो हो रही है, अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं तो 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो आप क्योंकि पर सेकंड में चल रहा है तो ये 10 मीटर पर सेकंड और इसको 6 मीटर पर सेकंड को क्यों ना आप सीधा फॉर्म वी ए माइनस वी बी ही लिख दें। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ गया वी ए माइनस, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ओके। तो इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म से समझोगे तो आपको पता रहेगा कि आप कर क्या रहे हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन था
अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आपका 10, वेलोसिटी ऑफ बी कितना आपका 6। तो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, ठीक है। क्या डायरेक्शन माना है? पॉजिटिव। तो इसकी पॉजिटिव हो गई और इसकी पॉजिटिव। तो आंसर क्या है आपका? +4 मीटर पर सेकंड। तो अब ये वेलोसिटी किसकी निकाली आपने? ए की। तो ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप, तो ये आ रही है पॉजिटिव। तो आप क्या लिखेंगे इस पॉजिटिव की जगह? टुवर्ड्स बी और अवे फ्रॉम बी? हाँ भाई, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये बी की तरफ है या बी से दूर की तरफ है? देखो बी की तरफ होती तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। इस डायरेक्शन मैंने माना है पॉजिटिव। तो आंसर आया +4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो डायरेक्शन है ए की, तो ये अवे फ्रॉम बी है ना। और अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स बी होता। हम्म Yes, sir. तो ये क्या आ गया? 4 मीटर अवे Away from B. फ्रॉम बी, ये आ गया 4 मीटर अवे फ्रॉम बी। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या हो जाएगी? वी बी माइनस वी ए, डेट इज इक्वल्स टू वी बी कितना है? +6 माइनस वी ए कितना है? +10। तो कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ इसका? नेगेटिव डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं आप, बी। अब इसको ए की रिस्पेक्ट में सोचें, आपका आंसर आया -4। -4 का मतलब है ये डायरेक्शन। तो ये अवे फ्रॉम ए है या टुवर्ड्स ए है? अवे फ्रॉम ए। सो 4 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए। अब आप एक बात देखो कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ये बात देखिए आपने, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, 4 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये अवे बी जो है वो अवे फ्रॉम ए है और ए जो है वो अवे फ्रॉम बी है। तो कौन सी दो बातें आपने कॉमन की नोट? जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ए बी और बी बी, तो कौन सी दो बात आपने नोट की? पहली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज सेम। उनके मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के? सेम। वो कैसे लिख सकते हो आप? अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसका तरीका क्या है? आप मॉड्यूलस साइन लगा दो। आप पता मॉड्यूलस साइन लगाते वो खत्म हो जाता है, प्लस माइनस चक्कर, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है। ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? Yes. पहली बात, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 10। अब ये ए यहां पहुंच गया, बी यहां से यहां पहुंचा, ए यहां से यहां पहुंचा। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 14 मीटर। 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। कितना बढ़ गया?
पहले इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 10, और अब जो है 10 से इनके बीच का डिस्टेंस 14 हो गया। पहले इनके बीच का डिस्टेंस 10 था, अब 14 हो गया, यानी कि 4 बढ़ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 4 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरे से दूर, यानी ए बी से और दूर चला गया, और बी अगर देखेगा तो बी कहेगा मैं ए से दूर चला गया। भाई बी क्या कहेगा, मैं ए से दूर चला गया, और ए क्या कहेगा, मैं बी से दूर चला गया। आप बताओ क्या कहोगे, आप ही बताओ। चलो पहले दोनों के बीच में 10 था। आप सपोज दो इंसान हैं और आप दोनों सेम डायरेक्शन मूव किए हैं, बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता, आप दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं, ये दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे, बी क्या कहेगा, भाई मैं तो ए से 14 मीटर दूर हो गया, पहले 10 था, 4 और बढ़ गया तो 4 मीटर। तो कहेंगे भाई क्या रिजल्ट आया, आप ये कहेंगे मैं तो 4 मीटर और दूर हो गया ए से। ए क्या कहेगा, मैं बी से 4 मीटर और दूर हो गया। बताओ आप क्या कहोगे, चलो बताओ। Yes, sir, same. भाई ए कहेगा मैं जितना पहले था उससे 4 मीटर, भाई मैं तो 4 मीटर और ज्यादा दूर हो गया। और बी क्या कहेगा, भाई मैं तो ए से 4 मीटर और ज्यादा दूर हो गया। तो बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक्चुअली में उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, तो इसलिए एक को अगर पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा अपने आप ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड इज सेम but direction is opposite. Case 1, both moving in same direction. और स्टूडेंट दो ही तो केस होंगे, या सेम डायरेक्शन मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तीसरा केस तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है तीसरा केस, अब आप अगला केस करो, केस 2। अब ये मेरी कार है सपोज सी, और ये है मेरी कार डी। वही चीज, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, ये तो आपके मानने की बात। मान लो सी मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड, और डी जो है वो मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा एक बात देखो, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, हमने एक चीज और देखी, हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की आई कैसे, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड आया, तो हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी ए या बी दोनों का डिफरेंस निकाल के मैग्नीट्यूड कर दिया। क्योंकि इसका मतलब क्या है, वी ए बी का वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए का मतलब क्या है, वी बी माइनस वी ए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बात आई समझ में? Yes, sir. भाई एक बात बताओ, मैं आपको ये कह रहा हूं इस केस में कि इसका भी 4 है मैग्नीट्यूड, और इसका भी 4 है मैग्नीट्यूड, दोनों का 4 है। उसका मतलब क्या है, वी ए बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, और वी बी माइनस वी ए, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। और इसको लिख देता हूं मैं वी ए बी
और इसका मतलब है VB। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज। इज दिस क्लियर? आप देखना आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन करने लगेंगे इस कंसेप्ट को समझते ही। स्पीड देखना आपकी कितनी बढ़ जाएगी। चलिए, अब अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D एंड वेलोसिटी ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू C। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ D, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं? नेगेटिव। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी ऑफ D प्लस 3 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ C क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड। एग्रीड? Yes, sir. तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल ले दोनों का, यानी कि वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ D एंड वेलोसिटी ऑफ D माइनस वेलोसिटी ऑफ C। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ C क्या है? -5 माइनस वेलोसिटी ऑफ D कितना है? +3। वेलोसिटी ऑफ D क्या है? +3 माइनस वेलोसिटी ऑफ C कितना है? -5। एग्रीड और नॉट एग्रीड? तो कितना आ गया? -5 -3 -8। यहां से कितना आ गया? +8। आया नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, एक बात और है, चलो ठीक है। तो यहां से भी 8 आया और यहां से भी 8 आया। तो मैग्नीट्यूड आप समझ गए होगे कि दोनों का क्या रहता है? सेम रहता है। ये चीज कॉमन है दोनों में। नोट 1 जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज सेम। लेकिन आप देख रहे हैं एक का जो है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर आप इस मैग्नीट्यूड का, तो ये आई है आपकी -8 और DC की आई है +8। यस, VCD क्या है आपका? -8 मीटर पर सेकेंड एंड VDC क्या है आपका? +8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बताएंगे क्या है? अब इस डायग्राम को अगर दोबारा ड्रॉ करें तो 1 सेकंड के बाद कौन कहां होगा बताना। ये था आपका 0, इन दोनों बीच का था डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। अब ये यहां से 1 सेकंड में 5 उधर चली जाएगी ये कार, C 5 मीटर। यस, और ये कहां चली जाएगी? D 3 मीटर। यस और नो? Yes, sir. तो यहां भी आप क्या कहोगे C से कि भाई मैं तो 8 मीटर दूर चला गया, और D क्या कहेगा? मैं C से 8 मीटर दूर चला गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसमें भी क्या होगा? अवे ही होगा भाई। ये डायरेक्शन आपकी क्या है? नेगेटिव। तो -8, C कह रहा है मेरी वेलोसिटी -8 है, तो C कहां जा रहा है D के कंपैरिजन में? Opposite away. अवे। तो 8 मीटर पर सेकेंड अवे। और ये D Also, he is also away. अवे, तो अवे फ्रॉम D। और ये भी यही कहेगा 8 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम C।
तो पॉइंट नंबर 1 मैग्नीट्यूड तो सेम है, और पॉइंट नंबर 2 मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कहानी खत्म। आपने देखा ये दोनों पॉइंट सेम है दोनों में। मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी का सेम है और दोनों एक दूसरे से मूव कर रहे हैं। एक तीसरा पॉइंट और हमें नोट करना था, वो क्या था? इस केस में वेलोसिटीज क्या हो रही हैं? सबट्रैक्ट हो रही हैं। वेलोसिटीज का क्या ले रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। और यहां क्या ले रहे हैं? तीसरा, भाई यहां 5 प्लस एडिंग, हाँ सम ऑफ मैग्नीट्यूड। बस एक ही डिफरेंस है। क्लियर हो गया? तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको पता लग गया, वो क्या होगा? सम ऑफ द मैग्नीट्यूड। सेम होगा दोनों का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस केस में? रिलेटिव के केस में जब दोनों बॉडीज अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सम। ओके, तो अब आपका कंक्लूजन क्या निकला? अगर ये वी ए है और ये वी बी है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, चाहे ये केस हो या ये हो, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। पहली बात, मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का? सेम। सेम। मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन किसके इक्वल होगा? डिफरेंस। पहले दोनों का डिफरेंस निकालने, पहले दोनों सिर्फ मैग्नीट्यूड लो और फिर उसका फिर मैग्नीट्यूड लो। ये है इसका मतलब। आई बात समझ में? या फिर वी ए का मैग्नीट्यूड लो माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड लो, यानी कि डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया क्या होगा? डिफरेंस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन मूव करें तो। और डायरेक्शन क्या होगी? वो तो सेम है, अवे फ्रॉम ईच अदर। और सेकंड केस स्टूडेंट्स, केस 2, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, वी ए इधर और वी बी इधर, या ऐसे भी हो सकता है, वी बी, वी ए इधर, वी बी इधर। तो दो केस इसमें भी हो सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसमें है मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इसमें है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे इनके? वी ए बी इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे? और किसके इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड्स? वी बी का मैग्नीट्यूड निकालो और वी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्लियर? मींस सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। किसके कर रहे हैं सम ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंस? ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज, राइट? और स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या होगी? वो तो सेम होगी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी दोनों में सेम है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड है डिफरेंस और इसमें मैग्नीट्यूड है
sum. Okay, direction away from each other. क्योंकि ये जो वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है वही वेलोसिटी डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेंज हो गया तो वो तभी तो चेंज होगा जब दोनों एक दूसरे से, वो उससे समझेगा कि भाई मैं इससे दूर चला गया, वो समझा मैं इससे दूर चला गया। तो आई होप कि रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट स्टूडेंट्स अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आप फटाफट जो है मतलब अपने क्वेश्चंस जो मर्जी निकाल लें, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तब आपको मजा आएगा, क्योंकि थ्योरी तो आपने अच्छे से समझ ली और हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, फॉर्मूलेस भी कर लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए, कंसेप्ट भी समझ लिया, और फार्मूला हमें पता ही है कि भाई वी ए बी है तो डेट इज वी ए माइनस वी बी। और एक बात और समझ लें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वी ए जी माइनस वी बी जी, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। समझ गए क्यों? वी ए और वी ए जी एक ही चीज है। कैसे? अगर आप लिखें वी ए जी तो दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी जी। अब वी जी तो जीरो है तो डेट इज वी ए माइनस जीरो, तो डेट्स इक्वल टू वी ए। तो इसीलिए वी जी लिखो या वी ए लिखो मतलब एक ही है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखें। सर मैं निकाल रहा हूं वी ए जी और वी जी ए, कोई बात नहीं, हमेशा ये जो है डायरेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर आएगी हमेशा। चाहे बी ए जी निकाल लो, मतलब ए अगर इधर जा रहा होगा आप इधर मूव करें तो जी ग्राउंड दूसरी तरफ जाता दिखेगा आपको, ग्राउंड हमेशा आपको अपोजिट जाता हुआ दिखेगा अपने से। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इसके। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। Thank you, sir.